کرتا ہے, وہ میری ستائش کرتا ہے, وہ میری حمد کرتا ہے, وہ میری عزت کرتا ہے. مگر آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے مذاہب ہیں, اور کسی کے ساتھ کوئی بھی اگر اس کے مسئلے کا حل نکل آتا ہے, لوگ جو ہے شکر گزاری کرتے ہیں. کچھ لوگ کھانا سامنے رکھ کے شکر گزاری کرتے ہیں, کئیاں نوں بھی نصیب نہیں ہوندی, وہ آئے کھانا تو فٹافٹ کھا دیں گے. انہوں نے پتہ ہی نہیں دتا کنے میں, آیا کتوں میں. وہ سمجھتے سب کچھ ہماری محنت سے آیا ہے, مگر نہیں جانتے کہ خدا وہ واحد ذات ہے جو دھرتی کا سینہ چیر کر اپنے لوگوں کے لیے فراوانی کا انتظام کرتا ہے, ان کی خوراک کا انتظام کرتا ہے, اور وہی اپنے لوگوں کو زمین پر رہتے ہوئے اچھی اچھی نعمتوں سے جو ہے وہ بھرتا ہے. اور زمین پر رہتے ہوئے خدا ان کو بیماریوں میں سے نکال کر ان کی زندگیوں کے اندر شفا کا ایک بڑا کام کرتا ہے. اور دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو شکر گزاری کا رویہ نہ رکھتا ہو. ہر انسان کی زندگی کے اندر شکر گزاری کا بھید ہے کہ اس کو کچھ بھی نعمت ملے, اس کو کوئی کام مل جائے, اس کو کھانے کو اچھا مل جائے, اس کو پہننے میں اچھا مل جائے, اس کو گاڑی مل جائے, اس کو گھر مل جائے, تو وہ خدا کی کیا کرتا ہے. آج اسی لیے ہم اس جگہ پر جمع ہیں کہ بھائی زاہد کو خدا نے کیا دی ہے, کیا دی ہے. آپ کی زندگی میں خدا نے شفا کا کام کیا ہے, اس لیے آپ اس کی کیا کر رہے ہیں, شکر گزاری کر رہے ہیں. اور کوئی بھی کسی بھی طرح سے خدا کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے شکر گزاری کی قربانی کو گزرانتا ہے. اور دنیا کے اندر ہر ایک چیز خدا کی دی ہوئی نعمت ہے, اور لوگ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. اب دوسری بات پہ آتے ہیں. شکر گزاری کے تعلق سے ہم نے کافی کچھ سیکھ لیا. اب جو دوسری اسی ورس کا دوسرا حصہ ہے, وہ کہتا ہے جو اپنا چال چلن کیا رکھتا ہے, اس کو میں کیا دکھاؤں گا. نجات کا تعلق شکر گزاری سے نہیں ہے. نجات کا تعلق آپ کی شخصی زندگی کے ساتھ ہے. اگر آپ اپنا دل خدا کے لیے کھولتے ہیں اور یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ میرے لیے قربان ہوا ہے, اس نے میری خاطر اپنے منہ پر تھکوایا ہے, اس نے میری خاطر اپنے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا ہے, اس نے میری خاطر اپنے ہاتھوں میں کیل ٹھکوائے ہیں, اس نے میری خاطر اپنی کمر پر 1 کم 40 کوڑے کھائے ہیں, اور جب اس کے بدن پر وہ کوڑے برس رہے تھے, اس کے گوشت کو نوچ رہے تھے, تو وہ میری نجات کا کام کر رہے تھے. اس لیے میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح میرا کیا ہے, نجات دہندہ ہے. نجات کا تعلق کس کے ساتھ ہے, آپ کی شخصی زندگی کے ساتھ اور آپ کی شخصی توبہ کے ساتھ. اگر ہم ادھر بہت کچھ کر لیں, ہم تو ستائش بھی کر لیں, آپ 20-25 لوگ ہیں, یہاں پر ہم 1000 لوگ بھی جمع کر لیں, ہم دیگے چڑھا لیں, ہم کچھ بھی کر لیں, اگر ہم نے شخصی طور پر اس کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا, تو پھر ہماری زندگی کے اندر برکت نہیں. برکت تب ہے ہماری زندگی کے اندر جب ہم اس کو اپنے دل کا بادشاہ بنائیں. ہاللیلویا. کیونکہ وہ کہتے ہیں جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ تو میری تمجید کرتا ہی کرتا ہے. آپ چرند پرند کو دیکھ لیں, خدا اپنی مٹھی کو کھولتا ہے اور زمین پر ہر جاندار کو سیر اور سودا کرتا ہے. آپ پتھر میں کیڑے کو دیکھ لیں, خدا اس کو بھی دے رہا ہے. مگر یہاں پر وہ نجات کا بھید کھول رہا ہے. وہ کہتے ہیں جو کوئی اپنا چال چلن کیا رکھتا ہے, بالکل سیدھا, ڈنگی چال نہیں, ہاں, آنکھوں میں بھی پاکیزگی ہو, بولنے میں بھی مٹھاس ہو, سننے میں بھی وہ باتیں سن رہے ہوں جو زندہ خدا کے کلام کے ساتھ جڑی ہوں. آپ سنتے کیا ہیں, ذرا ادھر دیکھیں سارے بھائی, نیند نہ کریں, ادھر دیکھیں ذرا. اگر آپ اپنی آنکھوں کو پاک رکھتے ہیں, اگر آپ اپنے کانوں کو پاک رکھتے ہیں, اگر آپ اپنا چال چلن درست رکھتے ہیں, آپ راست بازی میں قدم کو بڑھاتے ہیں, آپ اپنی زندگی کے اندر زندہ خدا کی حمد و ستائش کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر نجات کا بھید رکھتے ہیں, تو خدا ان زندگیوں کے اندر زبردست کام کرتا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے میری تمجید کرتا ہے. لیکن جو اپنا چال چلن کیا رکھتا ہے, بالکل سیدھا, ہاں, جو درست رکھتا ہے, اس کو میں خدا کی نجات کا تعلق آپ کی توبہ کے ساتھ ہے.
निजात का ताल्लुक आपकी वफादारी के साथ है। क्या आप हर रोज खुदा की हजूरी में जाकर झुकते हैं? क्या आप उसकी अता की हुई नेमतों बरकतों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं? क्या आप अपने बोलने से ऐबजोई तो नहीं कर रहे? क्या आप गाली गलौज तो नहीं कर रहे? या घर के अंदर आप या चर्च के अंदर आकर बड़े अच्छी तरह बैठ जाते हैं मगर घर के अंदर आपका तरीका कार कुछ हो रहा है? दोहरी शख्सियत के मालिक तो नहीं है, दुआ भी कर रहे हैं नाल सूटे भी खींच रहे है कोई? हाँ? खुदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, मुझे तो इधर आगे भाई ने कहा कलाम सुनाना है, खुदा के रूह ने ये कलाम आपके लिए। आमीन। वो कहते हैं जो कोई अपना चाल चलन जेड़ा सूटा ना खिंचे, जेड़ा ऐब जोई, जेड़ा गाली गलोच, जेड़ा बुरियां गल्लां, जेड़ा 3 घंटे फिल्म, 1 घंटा ड्रामा, इधर दी करके उधर दी करके सारे पासियों फेर फरा के कही असी खुदा दे बेटियां और बेटे हैं, भाई वो कबूल नहीं करेगा। उसके बेटियां और बेटे वो हैं जो अपनी जिंदगी से, अपने रवैयों से, अपने किरदार से, अपने मिजाज से, अपने बोलचाल से जिंदा खुदा को जाहिर करते हैं। वो उसके खून खरीदे लोग हैं और उन पर उसकी मोहर है। हसन तुसी सारे डेयो है कुछ एनजी सारा, हाँ? क्योंकि वो कहते हैं जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानते है। भाई किसी गलत फहमी में ना रहे, किसी धोखे में फ्रेम में ना रहे, आपकी शुक्रगुजारी आपको निजात कभी भी नहीं देगी। ये अच्छा अमल है, मैं डिस्करेज नहीं कर रही, मगर जो वो कह रहा है वो तो सुने। वो कह रहे शुक्रगुजारी तुझे आसमान की बादशाहत में लेकर नहीं जाएगी, तेरी शख्सी गवाही तुझे आसमान की बादशाहत के लिए तैयार करेगी। आमीन। जरा निकालेंगे मिकाया की किताब, उसका 6 बाब, उसकी 6 आयत पर देखिएगा। वो बताने लगा, कुछ बताने लगा, जरा सुन लीजिएगा जी। उसका 6 बाब, उसकी 6 आयत जल्दी से पढ़ दे, 6-7 आयत। मीका 6 बाब, उसकी 6 आयत। चले मैं पढ़े देती हूँ, यहाँ पर देखिएगा। वो कहते हैं मैं क्या लेकर खुदा के हजूर आऊं और हक ताला को क्यों कर सजदा करूं। आगे क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं जो नबी है। वो कहते हैं मैं क्या लेकर खुदा के हजूर, कहते हैं मैं क्या खुदा के हजूर लेकर आऊं और हक ताला को क्यों कर सजदा करूं। क्या सौखतनी कुर्बानियां और यकसाना बच्चों को लेकर उसके हजूर आऊं। क्या खुदावंद हजारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा। क्या मैं अपने पलोठे को अपने गुनाह के एवज में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदले में दे दूं। ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है, खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर क्या हो, फरोतनी से चले, हलीमी से चले, मोहब्बत के साथ चले, पाकीज़गी के साथ चले। क्योंकि खुदा 10,000 नहरों से खुश, खुदा 10 देगों से खुश, खुदा बछड़ों से खुश, खुदा बैल और बकरों से खुश। वो कहता है उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दिया कि तेरा चाल चलन क्या हो, दुरुस्त हो। तेरे चाल चलन में पहली बात क्या हो, वो कहते हैं खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू क्या हो, इंसाफ पसंद हो। पहला काम क्या हो तेरी जिंदगी में, तू इंसाफ करने वाला हो। ठीक है, पहला काम क्या करे, इंसाफ करे। अपनी जिंदगियों पर गौर करें, जरा घर के अंदर रहते हुए इंसाफ करते हैं क्या, अपने ही सदा काम ही दूसरियां दे रहे हैं। कई बहनें अपना काम शोहरों को दे देती हैं, कई शोहर भी अपना काम बीवियों को दे के चले जाते हैं, मेरे आन तो करे काम। हालांकि करना उनका होता है मगर वो दे। वो जरा चेक करें, छोटी छोटी चीजें हैं, किसी की हेल्प करना बुरी बात नहीं है। वो यहाँ पर कहता है तू पहला काम क्या कर, इंसाफ पसंद। दूसरा क्या हो, तू
रहम दिली, और रहम दिली को अजीज रखे। और तीसरा काम फरोतन, हलीम, हलीमी दे नाल, फरोतनी दे नाल झुक के अपनी जिंदगी के अंदर रास्तबाजी को कायम रखते हुए जमीन पर, घर के अंदर, चौक पर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, आप जिस जिस जिंदगी के एरिया के अंदर है, वो कहता है उस जगह पर फरोतनी के साथ, गुस्से के साथ नहीं, लड़ाई झगड़े के साथ नहीं, तल्ख कलामी के साथ नहीं, बल्कि वो कहता है जो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है वो मेरी क्या करता है, तमजीद करता है। जो अपना चाल चलन क्या रखता है, उसको मैं खुदा की निजात का ताल्लुक आपकी इंसाफ पसंदी से है, निजात का ताल्लुक आपकी रहमदिली से है, निजात का ताल्लुक आपकी फरोतनी से है, क्योंकि वो उन लोगों को पसंद करता है जो यीशु मसीह की मानिद अपना मिजाज रखते हैं। ये नहीं कि अगर किसी ने कुछ कह दिया, जैसे कि हुण कोई गल करके सानू जाए कित्थे, असीं ते चार सुनावांगे, जिन्नी देर सुना नहीं लवांगे सानू सुकून नहीं आना, साडे कलेजे ठंड नहीं पैनी। हाँ, हम कई कई दिन उसी गुस्से की लहर में रहते हैं, मगर खुदावंद कहता है कि माफ करो उसको। जिसने उसके मुंह पर थूका, उसने कहा मैंने इसको माफ नहीं करना। जिसने थूका उसने उसको भी माफ किया। जिसने कांटों का ताज पहनाया उसने उसको भी माफ किया। जिसने उसके हाथों में कील ठोंके उसने उसको भी माफ किया। जिसने एकम 40 कोड़े मारे उसने उसको भी माफ किया। जिसने उसके तन से उसके कपड़ों को खींच के उतार दिया, उसने उसके लिए भी पहला कलमा ये बोला, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये यीशु का कैरेक्टर है, ये यीशु का मिजाज है, ये यीशु का जिंदगी गुजारने का तरीकाकार है। हम देखें, हम जिसके फॉलोअर हैं उसकी खूबियां हमारे अंदर हैं भी है कि नहीं। खतूत के अंदर लिखा है वैसा ही रखो मिजाज जैसा कि मसीह यीशु का भी। यीशु की जात में कोई रत्ती पर गुनाह था, कोई थोड़ा जा एक नुक्ते जिन्ना कोई दस सकता है ऐसी कोई प्रॉब्लम यीशु की जात से? उन्हें अपना कीमती लहू तुहाडे नहीं बहाया, इसलिए बहाया है कि आप उसके वसीला से निजात पाएं, जिंदगी पाएं, खुशहाली पाएं, शादमानी पाएं, और हर रोज आपकी जिंदगियों के अंदर जिंदा खुदा के लिए शुक्रगुजारी के नतीजे। आमीन। क्योंकि वो कहता है जो शुक्रगुजारी की क्या करता है, कुर्बानी गुजरानता है, वो मेरी क्या करता है, और जो अपना चाल चलन क्या रखता है उसको मैं खुदा की निजात। मैं यहाँ पर एक छोटी सी गवाही देती हूँ, बड़ी मजे की, आप हंसेंगे भी। एक अंकल जी आए मेरे पास बड़े बीमार, उनको कोई इवल स्पिरिट प्रॉब्लम थी, वो काफ़ी पास्टरों के पास भी जाते थे। एक दिन अचानक मेरे पास आए तो कहते मेरी लिए दुआ करें। दुआ की, वो ठीक नहीं हुए, फिर आए कहते हैं जी मैनू गिला में पाटरियां करो। मैं कि की गिला? कहते ने मैं चर्च बन रहा सी, 1 लाख रुपया मैं दिता अपना कमेटी पा के, पर मैनू शफा नहीं हुई। तो मैं कि तुसी 1 लाख दिता अपना, अपनी ना दिता। आमीन। तुसी सिर्फ अपना दिल दे देंदे ते खुदा शाफी है, जो अंदर आंदा शिफा आप ही जारी हो जाए। हालेलुया। फिर तुहानू कहना नहीं सी पैना मेरे लिए दुआ करो, फिर तुसी दुनिया नहीं दुआ करनी सी, क्योंकि वो कहते जो अपना चाल चलन क्या रखता है वो खुदा की निजात में दाखिल है, वो आसमान की बादशाहत का उम्मीदवार ठहर सकता है। लेकिन अगर आप समझे कि शुक्रगुजारियां दे के चर्चिस में पैसे दे के, पास्टरों को दायकियां दे के, शुक्रगुजारियां दे के हम खुदा की बादशाहत में जाएंगे, तो ये आप सबसे बड़े धोखे में है। अगर आप निजात को लेना चाहते हैं तो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानने की जरूरत है कि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ है। उसने अपने बदन के लहू का एक एक कतरा मेरी और आपकी निजात के लिए बहा दिया है, ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत भी पाएं। आमीन। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।